Welcome, respected dignitaries, respected governing body members, respected Gurujan. Today's guest speaker, respected Dr. Puneet Kumar Garg sir, Ayurveda scholars, CRAB students, and live viewers in our 121st session of Gyan Ganga, a knowledge voyage. Before commencing session, I also would like to pay sincere and humble gratitude to our mentors, respected Padma Bhushan Vaidya Shri Devendra Ji Tigna sir, President Governing Body RAV, respected Vaidya Manoj Nestri Ji, Advisor Ayurveda, Minister of Ayurveda, and respected Dr. Kaustubh Upadhyay sir, Advisor Ayurveda and Director RAV, for their great contribution and valuable guidance and support for the sustenance of this series Gyan Ganga, and due to which we are able to bring various topics through this virtual platform to update and upskill our students, practitioners. A very sincere pranam to all of you, all of them too. So today we are back with our another very important topic, an etiological study of tamak shwas with service bronchial asthma. And to enlighten us on this topic, we have Dr. Puneet Kumar Garg sir with us as our guest speaker. Post session, we will be having question and answer session. And now I would like to give a brief introduction regarding our guest speaker. Dr. Puneet Kumar Garg sir is presently serving as professor at Department of Rog Nidan and Vikrat Vigyan at RB Ayurvedic Medical College and Hospital, Agra. Sir has pursued his graduation and post-graduation in Ayurveda from National Institute of Ayurveda, Jaipur. Sir has long teaching experience of 11 years. Respected sir has published approximate 20 papers in peer-reviewed journals. Sir has delivered lectures in many national and international conferences. Sir has also published a book and also recorded all chapters of Madha Nidan. यह रिकॉर्डिंग विद्यार्थियों के को सरलता से स्मरण कराने हेतु विशेष रूप से छंदबद्ध रूप में तैयार की गई है. As we know very well that we can recite poetry more easily compared to a paragraph. Now I request everyone to keep their mics off. At the end of the session, we will have question answer round with sir. Now I request Dr. Puneet Kumar Garg sir to continue the session and enlighten us with his knowledge. Over to you, sir. Welcome and thank you. लक्ष्मी नारायणं देवं प्रपन्नं करुणार्णवं लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः. मंगलाशासन परैर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मंगलम्. थैंक यू डॉक्टर मीनाक्षी जी. मैं राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ और उसकी एंटायर टीम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ. उन्होंने मुझे इनवाइट किया और अपॉर्चुनिटी दी यहाँ मुझे टॉपिक प्रेजेंट करने के लिए. मैं राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के डायरेक्टर इंचार्ज डॉक्टर कौस्तुभ उपाध्याय जी का भी हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ. और डॉक्टर मीनाक्षी जी, डॉक्टर पूनम जी और डॉक्टर सत्यपाल शर्मा, आप सभी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ. आज मैं यहाँ जो लेक्चर प्रेजेंट कर रहा हूँ वो एक लेक्चर ना होकर एक डिस्कशन ही है, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपरा है और मैं अपने आप को एक शिष्य के रूप में ही यहाँ सबके समक्ष प्रेजेंट कर रहा हूँ. और एक हेल्दी डिस्कशन से डिजीज के बारे में ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग सभी की बनेगी, सभी लाभान्वित होंगे, यही मंगल कामना है. तमक श्वास रोग से हम सभी परिचित हैं. तो ये हम जानते हैं कि तमक श्वास जो है वो
प्राणवय स्रोतस की व्याधि है। प्राणवय स्रोतस में प्राण क्या है? तो प्राण के विषय में बहुत सारी बातें मिलती हैं शास्त्रों में कि अन्न को भी प्राण कहा है, प्राणवायु को भी प्राण कहा है, रक्त को भी प्राण कहा है, और द्वादश प्राण भी बताए हैं, अग्नि सोमो वायु सत्वम रजस तमः पंचेन्द्रियाणि भूतात्मेति प्राणः। तो प्राण को वहन करने वाले स्रोतस, और स्रोतस के संदर्भ में हम जानते हैं स्रोतांसी खलु परिणामम आपद्यमानानां धातूनाम अभिवाहिनी सम्यक भवन्ति अयन अर्थी। आचार्य चक्रपाणि ने अपनी टीका में बताया। तो प्राणों को वहन करने वाले जो स्रोतस है उसको हम प्राणवय स्रोतस कहते हैं, और प्राणवय स्रोतस का जो मूल है वो है हृदय और महास्रोतस। हृदय यहाँ पर केवल हार्ट से अभिप्राय नहीं है, हृदय मतलब पूरा हमारा चेस्ट रीजन, हृदय और उसके साथ मतलब पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम हृदय शब्द संज्ञा से अभिग्रहित हो जाता है। और लंग्स और हार्ट दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, इसलिए जब भी हम हृदय की बात करते हैं तो लंग्स को उसके साथ जुड़ा हुआ हमें स्वयं ही समझ लेना चाहिए, क्योंकि हार्ट के द्वारा अशुद्ध रुधिर लंग्स में जाता है और लंग्स के द्वारा शुद्ध रुधिर फिर जब हार्ट में जाता है फिर वहां से पंप होता है पूरी बॉडी में लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू। तो ये जो है वो दोनों मिलकर एक हार्मोनी में काम करते हैं। एक में कोई डिजीज होती है, एक में कोई विकृति होती है, तो उसका परिणाम दूसरे पर पड़ता है। जैसे हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर यदि कंजेस्टिव हार्ट फेलर हो जाए, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाए, तो हम उसके परिणाम जो है लंग्स में भी इडिमा वगैरह आदि के रूप में देखते हैं। तो हृदय और दूसरा महास्रोतस, महास्रोतस से हम सामान्यतः जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का ग्रहण करते हैं। आचार्य चरक ने महास्रोतस को बताया कोष्ठा पुनरुच्यते महास्रोतः शरीर मध्यम महानिम्नम आम पक्वाशयश्चेति। तो ये जो पूरा जीआईटी ट्रैक्ट है आमाशय से पक्वाशय तक, वो पूरा महास्रोतस संज्ञा से उसका हम ग्रहण करते हैं। तो महास्रोतस में भी विकृति होने से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं। तो रेस्पिरेटरी प्राणवय स्रोतस की जो भी व्याधियां हैं उनमें महास्रोतस का भी योगदान है। इसलिए चिकित्सा करते समय हमें केवल प्राणवय स्रोतस की चिकित्सा पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करना है, बल्कि महास्रोतस की चिकित्सा पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कई रोगियों में केवल पित्त स्थान की चिकित्सा करने से भी तमक श्वास में आशातीत लाभ जो है दिखाई देता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी ब्रेन गट रिफ्लेक्स को अब काफी पहले से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है और वह भी इसे मानने लगे हैं। और हम देखते भी हैं कि जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाए तो हाइपरएपनिया हो जाता है, श्वास का वेग जो है बढ़ जाता है एक्सेसिव CO2 को बाहर निकालने के लिए। तो महास्रोतस में हुई विकृतियों का परिणाम सामान्यतः भी दृष्टिगोचर हम विभिन्न व्याधियों के रूप में देख सकते हैं। दूसरी चीज जो है प्राणवय स्रोतस के दुष्टि के हेतु क्या हैं? तो हम जानते हैं क्षयात् संधारणात् रोक्षयात् व्यायामात् क्षुधितस्य च प्राणवाहिनी दुष्यन्ति स्रोतांसी अन्यश्च दारुण। तो क्षय से, धातु क्षय होने से वायु का प्रकोप होता है, वेगों को धारण करने से, रोक्षता रुक्ष गुण की वृद्धि से, भोजन करने के पश्चात व्यायाम करने से, इसके अलावा स्रोतांसी अन्यश्च दारुण ही अन्य स्रोतसों में भी यदि कोई डिजीज हो जाती है तो भी
उसके साथ में प्राणवायु स्रोतस की दुष्टि हो सकती है। जैसे कि डिस्निया, वो कार्डियक कॉज से भी हो सकता है, वो उसका कोई जरूरी नहीं है कि रेस्पिरेटरी कॉज ही हो, वो कार्डियक कॉज से भी हो सकता है। तो ये सभी जो है प्राणवायु स्रोतस की दुष्टि के हेतु हैं। आचार्य ने प्राणवायु स्रोतस की दुष्टि के जो लक्षण बताए, प्रदुष्टा नाम तो खलु येषाम विशेष विज्ञानम भवति तद यथा अतिसृष्टम अतिबद्धम। अतिसृष्ट श्वास यानी श्वास का, इनको हम कार्डिनल फीचर मान सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो भी डिजीज हैं। जैसे मॉडर्न में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पर अपन डिस्निया, स्पुटम एक्सपेक्टोरेशन, चेस्ट टाइटनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आदि जो भी कार्डिनल फीचर हैं, उन्हें अपने आयुर्वेद में प्राणवायु स्रोतो दुष्टि के लक्षण के रूप में हम देख सकते हैं। अतिसृष्टम श्वास यानी कि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन, अतिबद्धम टू रेस्ट्रिक्टेड रेस्पिरेशन, कुपितम एग्रेवेटेड रेस्पिरेशन, अल्पा अल्पम अभीक्षणम यानी चैन स्टॉप रेस्पिरेशन, अभीक्षणम यानी कि रिपीटेड, एंड जैसे कि हमें तमक श्वास में पैरोक्सिज्म ऑफ अस्थमा जो है हमको मिलता है, तो ये दृष्टा प्राणवानी स्रोतांश प्रदुष्टानी इति विद्यात। तो इस तरह के लक्षण जो है हमें प्राणवायु स्रोतो दुष्टि में देखने को मिलते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार के लक्षण हमें तमक श्वास रोग में देखने को आते हैं। तो श्वास जो है वो सामान्यतः केवल अभी 5 प्रकार की श्वास होती हैं। हम यहाँ आज हमारा जो विषय है वो केवल तमक श्वास पर केंद्रित है। और तमक श्वास का जो क्लासिकल प्रेजेंटेशन आचार्य चरक ने चरक संहिता में लिखा है 17वें अध्याय में, वैसा ही प्रेजेंटेशन हमें रोगी में देखने को मिलता है एट द टाइम ऑफ पैरोक्सिज्म ऑफ, जब एपिसोड आता है, अटैक आता है एजमेटिक, तो हमको वही प्रेजेंटेशन एज इट इज देखने को मिलता है। हालांकि श्वास रोग की जब हम बात करते हैं तो केवल अस्थमा नहीं, बाकी सभी प्रकार की श्वास जो किसी भी कारण से हुई हो, सभी का समावेश, सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का, चाहे वो ब्रोंकिक्टेसिस हो, चाहे वो पल्मोनरी एडिमा हो, चाहे वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो, सभी का समावेश जो है वो श्वास रोग के अंतर्गत हो जाता है। तो श्वास रोग को जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये एक बड़ी ही मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है। जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनमें तमक श्वास आज बहुत सारी और अभी जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, मॉडर्न लाइफ स्टाइल अर्बनाइजेशन के कारण भी यह रोग जो है जन समुदाय में व्यापक रूप से अब प्रचलित हो गया है, ऐसा मान सकते। आचार्य चरक ने भी कहा कि कामम प्राण हरा रोगा बहवो नातु ते यथा यथा श्वासश्च हिक्का च प्राणानाशु निकृंतता, कि जितने भी प्राण को हरने वाले रोग हैं जिनमें मृत्यु तक हो सकती है, ऐसे ही रोगों में हिक्का और श्वास, ये जो 2 रोग हैं, ये शीघ्र ही प्राणों को नाश करने वाले हैं। ऐसे बहुत से रोग हैं जो रक्तपित्त आदि, लेकिन उनमें भी हिक्का श्वास जो है वो विशिष्ट हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आगे अन्य अपि उपसंश्च रोगैर जंतु पृथक विदहि अंते संजायते हिक्का श्वासो व तीव्र वेदना। अंत में यदि अन्य भी कोई रोग हुआ है किसी प्रकार का, तो अंत में जो है रेस्पिरेटरी फेलर होता ही है, श्वास रोग के कारण ही उसकी मृत्यु होती है, इसलिए अंत समय में उपस्थित होता ही। इसकी प्रेवलेंस देखें तो आज क्योंकि श्वास रोग के बहुत सारे लक्षण जो है, हालांकि तमक श्वास में और भी डिजीज का अंतर्भाव हो सकता है, लेकिन ब्रोंकियल एस्मा से इसकी सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है। और जो आचार्य ने इसके लक्षण लिखे हैं उसको हम प्रेजेंटेशन मान सकते हैं एट द टाइम ऑफ एपिसोड ऑफ ब्रोंकियल एस्मा, और वो एज इट इज ऐसे ही हमें मिलते हैं। इसलिए हम यहाँ ब्रोंकियल एस्मा को ही लेकर चल रहे हैं। तो श्वास रोग में की जो हम प्रेवलेंस देखते हैं, तो 2019 में लगभग 262 मिलियन वर्ल्ड वाइड जो है इस रोग से पीड़ित थे, और जिसमें लगभग 4,55,000 डेथ जो है एक साल में इस रोग से
हो जाती है। 2019 का आंकड़ा है WHO का। और इसी तरह अपने देश में भी आज फूड हैबिट्स में चेंज होने के कारण, अर्बेनाइजेशन के कारण, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट के कारण, लाइफस्टाइल में चेंज होने के कारण यह रोग जो है अब एक सामान्य रूप लेता जा रहा है। तो इसलिए हमको ओपीडी में श्वास रोग के काफी रोगी जो है वो देखने को मिलते हैं। इसलिए आज जो है हम केवल इस रोग को हम ज्यादा अच्छे से समझ पाए, इसकी क्या एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, क्या पैथोजेनेसिस है, और उस पैथोजेनेसिस को समझ के हम उसको चिकित्सा में कैसे उसका प्रयोग कर सकते हैं, कैसे उससे लाभान्वित हो सकते हैं, यही जो है इसका उद्देश्य है। तो श्वास रोग की जो आचार्य माधवकर ने, विजय रक्षित जी ने बताया, भस्त्रिका आत्मान सम वातोर्ध्वगामी था कि जैसे लोहार धोखनी में हवा भरता है तो जिस प्रकार की आवाज आती है, ऐसे ही वायु का ऊर्ध्वगामी होना और उसी प्रकार की आवाज का आना, इसको हम श्वास रोग का एक लक्षण मानकर चल सकते हैं। किसी प्रकार के श्वास रोग में रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी होना यानी डिस्निया, ये फीचर हमको देखने को मिलता ही है। इसको हम प्रत्यात्म लक्षण मान सकते हैं श्वास रोग का। श्वास रोग के 5 प्रकार बताए, या महा ऊर्ध्व छिन्न तमक क्षुद्र वेद ही तो पंचदा विद्यते सा महाव्याधि श्वास एको विशेषता। तो महा ऊर्ध्व और छिन्न श्वास, उनको आचार्य ने असाध्य कहा है, और क्षुद्र श्वास जो है साध्य है। सामान्य भोजन या अल्प व्यायाम आदि से ही प्रकोपित हो जाती है और सामान्य उपचार से ठीक भी हो जाती है। तभी हमारा मेन जो कंसिडरेशन है वो तमक श्वास पर है। इसको आचार्य चरक ने याप्य और आचार्य सुश्रुत ने इसको जो है कष्ट साध्य बताया तमक श्वास। तो तमक श्वास में इसकी जो है हम पहले श्वास रोग जो रेस्पिरेशन यानी डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, तमक का मतलब क्या हुआ कि तमसी प्रवेशित रोगी जो है स्वयं को जैसे ड्रॉनिंग इन डार्कनेस, अंधकार में डूबता हुआ महसूस करता है, क्योंकि उसे लेक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई थ्रू ब्लड। और श्वास मीन डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, इसलिए जिस डिजीज में रोगी एक्सट्रीम फटीग, वीकनेस, मेंटल ग्लूमिंग और ऐसा फील करता है कि जैसे मैं अंधकार में डूब रहा हूँ और श्वास लेने में उसे कष्ट का अनुभव होता है, उस रोग को हम तमक श्वास रोग के नाम से जानते हैं। श्वास का रोग, श्वास की प्रक्रिया का वर्णन आचार्य शारंगधर ने बहुत ही ऑर्नामेंटल लैंग्वेज में किया है। आप सभी ने पढ़ा होगा, नाभिस्था प्राण पवनः स्पृष्ट्वा हृत कमलांतरम। यहाँ भी नाभि से मतलब हृदय से ही है, और हृत कमलांतरम मतलब पूरा प्रदेश, हृदय और उसके आसपास की जो भी संरचनाएं हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। इस परिभाषा से भी हमको पता चलता है कि हृदय शब्द से केवल हमें हार्ट का नहीं बल्कि फुफ्फुस का, लंग्स का भी जो है ग्रहण कर लेना चाहिए। तो पीत्वा चेम्बर पीयूषम पुनरायाति वेगता प्रीणयन जीवन नग्नम आदि आपने ये पढ़ा है डिस्क्रिप्शन। तो इसमें आगे नहीं जाके अब हम निदान पर आते हैं कि श्वास रोग के निदान क्या है। तो मेरे पास में भी एक्चुअली पीपीटी प्रिपेयर नहीं हो पाया, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा, यदि चरक है तो आप लोगों को थोड़ा इजी होगा। तो आचार्य सुश्रुत ने भी हिक्का, श्वास और कास तीनों रोगों के निदानों को एक साथ ही लिखा, सिमिलरिटी होने के कारण। तो विदाही गुरु विष्टम्बी रुक्ष भिषंदी भोजनहि शीत पानाशन स्थान रजो धूमा तपा निलहि व्यायाम कर्म भाराध्व वेगाघाताप तर्पणहि हिक्वा श्वासश्च कासश्च नृणाम समुपजायते। ऐसी जो है निदानों का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया, और आचार्य चरक ने और भी अधिक डिटेल में श्वास रोग के निदान बताए। रजसा धूम वाताभ्याम शीत स्थानाम्बु सेवनात् व्यायाम व्यायामाद ग्राम्य धर्माध्व रुक्षान निषेवणात् आम प्रदोषात् अनाहात्
रोक्षातति तर्पणा दौर्बल्यान मर्मणो घाता धुंधाक्षति। अभी जितने भी जो निदान बताए हैं आचार्य ने, अभी अपने पास में चूंकि पीपीटी नहीं है तो उसको मैं शॉर्ट में समझाता हूँ कि जितने भी निदान हैं वो या तो आहारज निदान है, तो आहारज में भी या तो द्रव्य विशेष हैं कि इन चीजों को भोजन करने, जैसे निष्पाव माश पिण्याक तिल तैल निषेवणात्, है ना, या उनके गुण ऐसे ऐसे रुक्ष, तो रुक्ष गुण वाला आहार या गुरु गुण वाला आहार या शीत गुण वाला आहार, अभिषंधि विदाही विष्टम्बी और श्लेष्म, इतनी चीजें आचार्य ने बताई कि यदि गुरु आहार और शीत आहार या रुक्ष आहार या गुरु शीत अभिषंधि या रुक्ष विदाही विष्टम्भी या कफ प्रकोपक आहार का सेवन करने से, तो यहाँ कफ रोग, ये तमक श्वास रोग जो है वो हो जाता है। कुछ फूड हैबिट्स है जैसे कि अध्यशन विषमाशन करने से, अपतर्पण करने से, कुछ जो निदान है वो विहारज निदान है, जैसे कि रज का सेवन यानी कि डस्ट या पॉलन ग्रेन्स या एनिमल डेंडर्स या आपके फ्यूम्स, जैसे पॉल्यूशन आदि के कारण फ्यूम्स, धूल धुआं, धूल के कण आदि, इनका संपर्क में जब व्यक्ति आता है या एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में के कारण या ठंडी चीजों का सेवन करने से, जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा, या ठंडे प्रदेशों में या ठंड के वातावरण में अचानक जाने से भी जो श्वास रोग है वो अग्रेवेट हो जाता है। और ऐसे ही अति व्यायाम करने से, एक्सरसाइज से ना, तो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड भी एजमा होता है, और अत्यधिक चलने से, व्यायाम करने से, अति व्यवाय से, एक्सेसिव सेक्सुअल इंटरकोर्स, इन सब चीजों से जो है ये कुछ विहारज निदान आचार्य ने बताए, और ऐसे ही कुछ निदानार्थ कर रोग बताए, क्योंकि श्वास जो है वो केवल एक रोग नहीं है, कई रोगों के पूर्व रूप के रूप में, तो बहुत सारे रोगों के लक्षण रूप में और बहुत सारे रोगों के उपद्रव रूप में भी श्वास रोग हो जाता है। तो बहुत सारे निदानार्थ कर रोग हैं, अतिसार, ज्वर, सर्दी, प्रतिशय, क्षतक, क्षयात आदि रोगों में भी, पांडु आदि रोगों में भी श्वास रोग हो जाता है। तो पांडु एनीमिया में भी श्वास डिस्निया देखने को मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन की डिमांड बॉडी की पूरी नहीं हो पाती ड्यू टू हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से, तो इसलिए वहाँ टैकीकार्डिया और साथ ही साथ जो है रेस्पिरेटरी रेट जो है वो भी इंक्रीज देखने को मिलती है। ऐसे ही इन सब हेतुओं में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे हेतु बाह्य हेतु हैं, जैसे रस, धूम, आतप आदि, शीत स्थान, और बहुत सारे जो है निज या अभ्यंतर हेतु हैं, जो कि मुख्य रूप से इन सब हेतुओं में देखने में आता है कि वो या तो वात प्रकोपक हैं या फिर कफ प्रकोपक हैं। जैसे रस, धूम आदि ये सब वात प्रकोपक हेतु हैं या रुक्ष हेतु, या इसके अलावा जो शीतपान या शीत स्थान, ये सब वात और कफ दोनों को प्रकोपित करने वाले हेतु हैं। और गुरु, अभिषंधि, इस प्रकार का आहार, ये जो है कफ प्रकोपक हेतु है। इसके अलावा कुछ पित्त प्रकोपक हेतु भी हैं, लेकिन अधिकांश हेतु जो है वो वात और कफ प्रकोपक ही तमक श्वास रोग में देखने को आते हैं। ऐसे ही आम को भी तमक श्वास का हेतु बताया आचार्य ने, और खा वैगुण्यकर हेतु जो एक आपके रज है, धूम है, ये सब खा वैगुण्य, स्रोतो वैगुण्य भी उत्पन्न करते हैं। और जैसे कि पोलन ग्रेन्स हैं, एनिमल डेंडर्स हैं, उनके फेदर हैं, जैसे कि बहुत सारे कारणों से एज्मा जो है वो एग्रेवेट हो सकता है। अस्थमा के जो निदान है, कुछ तो सेवन करने से धीरे धीरे साम कफ की वृद्धि होने के कारण जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, एयरवेज है, उसमें हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस आ जाती है, प्री डिस्पोजिशन हो जाती है। तो इस वजह से जो है जब भी रोगी फिर रज, धूम या फिर बहुत पॉल्यूशन वाले वातावरण में रहता है, या कोल माइंस में काम करने वाले लोग हैं जो डस्ट और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के संपर्क में आते हैं, ऐसे लोग हैं, या स्ट्रॉन्ग कोई भी गंध है, परफ्यूम है, सेंट है, परफ्यूम है,
या कई बार फूल, जैसे किसी को गुलाब के फूल से ही अस्थमा जो है वो एग्रेवेट हो जाता है। तो इन सब हेतुओं को जो है हम प्रेरक हेतु कहते हैं। तो या व्यंजक हेतु कहते हैं, व्यंजक को प्रेरक का अर्थ था। तो इस प्रकार से जो है श्वास रोग के जो निदान है उनका जब हम विवेचन करते हैं, जो बहुत डिटेल में हमारे यहाँ क्लासिफाई किए गए हैं, जबकि मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी अस्थमा रोग के जो भी निदान हैं उनमें बाह्य निदान, जो कि रस, धूम या कोल्ड वेदर आदि की ही प्रधानता विशेष रूप से मिलती है। और जो आहारज निदान है उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग अभी तक मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी डेवलप नहीं हुई है, लेकिन हमारे आयुर्वेद लिटरेचर में आहारज निदानों को भी, खा वैगुण्यकर निदानों को भी, आम प्रदोषक हेतुओं को भी बहुत विस्तार में जो है आचार्यों ने उसको अपने संहिता ग्रंथों में लिखा है। तो हम रोगी को ज्यादा बेटर एजुकेट कर सकते हैं, उसे पथ्यापथ्य का बोध करा सकते हैं। इसीलिए आचार्य ने जो श्वास रोग है उसको कफ और वात, कफ वातात्मकौ एतौ पित्त स्थान समुद्भव ऐसा कहा कि जो ये श्वास रोग है ये कैसा है, कफ वातात्मक है। कफ और वात प्रकोपक, विशेष रूप से कफ दोष की और वात दोष की दृष्टि जो है तमक श्वास रोग में जो है हमको देखने को मिलती है। इसलिए चिकित्सा में भी विशेष रूप से इन दो दोषों का हमें ध्यान रखना है। लेकिन साथ ही साथ आचार्य ने कहा पित्त स्थान समुद्भव, यहाँ पित्त स्थान से आमाशय अभिप्रेता चक्रपाणी लिखते हैं, पित्त स्थान से आमाशय का अभिप्राय लिया है उन्होंने। तो इसीलिए चिकित्सा में हमें पित्त स्थान को भी साथ में लेकर चलना है। अभी आगे संप्राप्ति के पश्चात हम इस विषय को और देखेंगे। तो आगे जब हम इसकी संप्राप्ति, इसके पूर्व रूप आचार्यों ने वर्णन किए हैं, फिर उसके बाद उसकी संप्राप्ति बताई है। तो स्टमक श्वास रोग की जो भी पैथोजेनेसिस है, संप्राप्ति है, तो मारुतः प्राणवाहिनी स्रोतांसी आविश्य कुप्यति, कि वायु जो है, प्राणवायु, वायु जो है जब प्राणवय स्रोतस में प्रवेश करती है तो वहां जाकर वो कुपित हो जाती है। और उरस्था कफम उद्धूय, और उरह प्रदेश में स्थित कफ को उभार कर हिक्का श्वास रोग को जो है वो उत्पन्न करती है। ये हिक्का श्वास दोनों रोगों की सामान्य संप्राप्ति है, ऐसा आचार्य ने बताया। दूसरी संप्राप्ति आचार्य ने फिर विशिष्ट संप्राप्ति बताई तमक श्वास रोग की। यदा स्रोतांसि संरुध्यः मारुतः कफ पूर्वकः विश्वक व्रजति सन्नुद्धः तदा श्वासान करोति सः। तो यहाँ आचार्य ने कहा कि ये जो दो संप्राप्ति श्वास रोग के प्रसंग में आचार्य ने बताई है, कहने का तात्पर्य इसलिए है क्योंकि दोनों प्रकार की संप्राप्तियों में अंतर है। जो प्रथम प्रकार की संप्राप्ति है जो मारुतः प्राणवाहिनी, वह वात प्रधान संप्राप्ति है, और जो दूसरी संप्राप्ति है वह कफ प्रधान संप्राप्ति है। तो मारुतः प्राणवाहिनी स्रोतांसी आवश्यक कुप्यति, यहाँ वायु पहले से कुपित नहीं है। और उरस्था कफम उद्धुए, यहाँ पर क्या है कि वायु कुपित होकर कफ को उभार कर ले जा रही है। यहाँ पर कफ पहले से दुष्ट नहीं है, वायु दुष्ट है, और वो दुष्ट वायु, कुपित वायु कफ को अपने स्थान से उभार कर और उसे फिर सिक्रेशंस को बढ़ाकर मलभूत कफ की वृद्धि करके स्रोतों में अवरोध उत्पन्न कर श्वास रोग की उत्पत्ति करती है। दूसरी प्रकार की जो संप्राप्ति है, यदा स्रोतांसी संरुध्य मारुतः कफ पूर्वकः, यहाँ जो कफ पूर्वक है, यहाँ पर यह कफ प्रधान संप्राप्ति है। यहाँ जो एयरवेज हैं, यहाँ जो ट्रैक्योब्रोंकियल ट्री है उसमें जो एयरवेज हैं वो पहले से ही ऑब्स्ट्रक्टेड हैं ड्यू टू कफ दोषा। कफ दोष के कारण जो एयरवेज का पैसेज है वो नैरो हो गया है और वहां से लगातार म्यूकस का सिक्रेशन बना हुआ है, इसलिए वायु के आवागमन के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो रही है। और वायु की जो प्राकृतिक गति है
उसमें अवरोध उत्पन्न होने के कारण वह वायु पश्चात कुपित होकर श्वास रोग की उत्पत्ति करती है। तो इस प्रकार से यहाँ दोनों प्रकार की संप्राप्तियों में अंतर है। पहले प्रकार की जो संप्राप्ति है वह बताती है कि वायु पहले से ही कुपित है और वह कुपित हुई वायु प्राणवय स्रोतस में प्रवेश कर वह प्राणवय स्रोतस में ही क्यों प्रवेश करती है? क्योंकि जहां खा वैगुण्य होगा, जहां प्री डिस्पोजिशन होगा, जहां पर हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस होगी, जो मेम्ब्रेन है, बेसल मेम्ब्रेन है ब्रोंकस की, वहीं जाकर जहां खा वैगुण्य है, कुपितानाम ये दोषाणाम शरीरे परिधावताम यत्र संगः खा वैगुण्याद व्याधिस्तत्रोपजायते। ये हमने पढ़ा है कि कुपित हुए दोष शरीर में परिभ्रमण करते हुए कहाँ स्थान संशय करते हैं? जहां पर खा वैगुण्य होता है। खा वैगुण्य पूर्व पीठिका है, जहां पर खा वैगुण्य क्यों होता है? ये निदान की विशेषता से होता है। सा एव कुपितो दोषः समुत्थान विशेषतः, निदान की विशेषता है स्थानांतर्गत, और वहीं पर ही फिर स्थानांतर गमन होता है दोषों का। निदान का सेवन करने से निदान का एक अंश दोषों को कुपित करता है, संप्राप्ति निर्माण प्रक्रिया में भाग लेता है, और निदान के ही एक अंश से शरीर के विभिन्न स्रोतों में से कहीं पर भी विशिष्ट रूप से खा वैगुण्य की स्रोतो वैगुण्य की प्रवृत्ति भी हो जाती है। और जहां क्षय वैगुण्य होता है वहीं पर ही फिर वो प्रकुपित दोष जाकर स्थान संशय करते हैं, और वहीं पर फिर दोष दूष्य सम्मूर्छना होती है और व्याधि के पूर्व। और जब दोष दूष्य सम्मूर्छना समाप्त हो जाती है तो व्याधि के लक्षण जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो ये जो वात प्रधान संप्राप्ति है, यहाँ पर वायु प्रकुपित होकर, वायु प्रकुपित क्यों हो रही है? क्योंकि रुक्ष और शीत गुण, खर गुण, ये वायु के जो है इन अंशों में कुपित हो जाते हैं। विकल्प संप्राप्ति में विकल्प अंशांश कल्पना, क्योंकि जो धुआं है, धूल के कण हैं, परफ्यूम्स हैं, ये सब क्या करती हैं? वायु के खर गुण की, रुक्ष गुण की वृद्धि कर देती हैं। ऐसे ही कोल्ड एयर, कोल्ड वेदर, है ना, ऐसे ही पॉल्यूटेंट्स जितने भी हैं, गैसेस हैं, वो सब क्या करती हैं? वायु के खर रुक्ष गुणों की वृद्धि करती हैं। और जब यह वायु प्राणवय स्रोतस में प्रवेश करती है तो ऐसी जो वायु है वो प्राणवय स्रोतस में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, एयरवेज में, वहां जो प्राकृत कफ है उसका शोषण करती है और वहां खरता, रुक्षता को उत्पन्न करती है। और पश्चात उसी कफ से उसका मार्गावरोध हो जाने के कारण फिर वह वायु कुपित हो जाती है और फिर वह कफ का हाइपर प्रोडक्शन कराती है, यानी कि मलभूत कफ की वृद्धि कराती है उसी कफ से आवृत हो जाने के कारण। और इस प्रकार से वह फिर श्वास रोग को जो है उत्पन्न करती है। दूसरी प्रकार की जो संप्राप्ति है, इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे ही रोगी संपर्क में आता है, कोल्ड वेदर के संपर्क में आया, या कईयों को जैसे अभी बसंत ऋतु का टाइम आता है, फसल कटने का टाइम आता है, तो हम देखने में आता है कि उनको जो है एस्मेटिक अटैक आने की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। ऐसे ही कोल्ड वेदर में, हेमंत शिशिर ऋतु में, दिसंबर जनवरी के आसपास के पीरियड में, दिसंबर जनवरी में हम देखते हैं कि एस्मेटिक अटैक आने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है। तो ये जो दोषों का प्रकोप है यहाँ पर वायु का, यहाँ पर क्या होता है कि ये वायु का अचय प्रकोप कहलाता है। एक रोग की उत्पत्ति दो प्रकार से रोगों की संप्राप्ति होती है, ऐसा आचार्य चरक ने बताया। उन्होंने कहा कि काठिन्याद ऊन भावात दोषो अंतः कुपितो महान, कि दो प्रकार से दोष कुपित हुए।
एक काठिन्य से एक ऊन भाव से। काठिन्य का मतलब दोष का संचय होने से, दोषों का संचय होगा, फिर प्रकोप होगा, प्रसर होगा, स्थान संशय होगा, दो दूष्य समूर्छना होगी, फिर व्याधि के लक्षण उत्पन्न होंगे। एक पूरा प्रोसेस जो है वो पैथोजेनेसिस का जब शरीर के अंदर घटित हो जाएगा और उसमें बहुत सिस्टम और ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, तब दो दूष्य समूर्छना के उपरांत व्याधि की उत्पत्ति होती है। तो यह व्याधि का जो है क्षय प्रकोप कहलाता है। लेकिन तमक श्वास रोग में जो एक्सट्रिंसिक टाइप का जो अस्थमा होता है, जो एटोपिक अस्थमा होता है, वहां देखने में आता है कि वायु जैसे ही रोगी डस्ट के संपर्क में आया, उसे जो है राइनाइटिस हुआ, कफ हुआ, और फिर जो है उसे एजमेटिक चेस्ट टाइटनेस होती है, और फिर उसे जो है एजमेटिक अटैक आ जाता है। तो यहाँ जो है संचय तो हुआ ही नहीं दोषों का, यहाँ पहले से ही जो ब्रोंकियल वाल है उसमें हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस है। जैसे ही रज धूम उस ब्रोंकियल वाल के संपर्क में आए, तुरंत जो है रोग के लक्षण उत्पन्न होने लगे। तो इस प्रकार का प्रकोप जो है यह अचय प्रकोप कहलाता है। इसी को ऊन भावात, काठिन्यात ऊन भावात दोषो अंतः कुपितो महान, ऐसा जो है आचार्य ने बताया। तो ये जो पहली प्रकार की संप्राप्ति है, यहाँ पर हमें वात दोष का अचय प्रकोप के कारण यह संप्राप्ति परिघटित होती है। धुआं आदि जो पोलन ग्रेन्स, एनिमल डेंडर्स, उनके फेदर्स, एसेट्रा एसेट्रा जो चीजें हैं, उनसे जो है इस रोग की संप्राप्ति बनती है। दूसरी जो है संप्राप्ति है, उसमें क्या है कि यदा स्रोतांसि संरुद्ध मारुतः कफ पूर्वका, वहां पर क्या है कि कफ जो है वो पहले से ही उसका हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, और उसका हाइपर सिक्रेशन होने के कारण वायु का मार्ग जो है अवरुद्ध हो रहा है, और वायु का मार्ग अवरुद्ध होने के कारण ही फिर वो वायु कुपित होकर तमक श्वास रोग को उत्पन्न करती है, श्वास कष्ट उत्पन्न करती है। इसको आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ इस प्रकार से संप्राप्ति दो प्रकार की है, और तीसरी प्रकार की संप्राप्ति, कई रोगी ऐसे होते हैं जिसमें दोनों प्रकार की संप्राप्ति देखने में आती है। यहाँ संप्राप्ति को समझने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इन तीनों प्रकार की संप्राप्ति होने पर तीनों प्रकार की चिकित्सा में भी अंतर आ जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें अपना लाइन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करना चाहिए। फिर हम तमक श्वास पर आते हैं। तो तमक श्वास रोग की संप्राप्ति आचार्य ने बताई, प्रतिलोमम यदा वायु स्रोतांसि प्रतिरुध्यते ग्रीवाम शिरश्च संगृह्य श्लेष्माणम समुदीर्य। कि प्रतिलोम वायु प्रतिलोम गति को प्राप्त होकर, कौन सी वायु, जो अपन कास के प्रसंग में भी हमने पढ़ा था कि अधा प्रतिहतो वायु ऊर्ध्व स्रोता समाश्रिता, वह जो वायु है वही, वैसे ही प्राण और वायु एक ही है, केवल उसके कर्म विशेष को और चिकित्सा में सौकर्य के लिए और उसके विशिष्ट स्थानों में विशिष्ट लक्षण दृष्टिगोचर होने के कारण उसे हमने 5 भेद कर दिए। वैदिक शास्त्रों में तो केवल 2 ही भेद प्राण और अपान वायु के बताए जाते हैं। गीता में भी प्राण और अपान 2 ही भेद किए हैं वायु के। तो यह जो वायु है प्रतिलोम गति को प्राप्त होकर स्रोतांसी प्रतिलोमम यदा वायु स्रोतांसी प्रतिपद्यते, तो स्रोतांसी बहुवचन है, तो प्राण उदक अन्न वह स्रोतसों को, फिर वह वायु का मार्ग चूंकि कफ से अवरुद्ध हो गया है, वायु जो है चैनल में जो है प्रॉपरली वो गमन नहीं कर पा रही है, ऑब्स्ट्रक्शन है चैनल में, तो इसलिए वायु जो है रिवर्स डायरेक्शन में, अपवार्ड डायरेक्शन में जो है वो गमन करती है। और
इस वजह से फिर क्या होता है, ग्रीवाम शिरिश्च संग्रही है, वह ग्रीवा प्रदेश में सर्वाइकल रीजन में चली जाती है, शिरह प्रदेश में चली जाती है, और वहां पर वह फिर कफ को श्लेष्माणम समुदीर्य, उसका उदीर्ण कराती है, उसे उभारती है। करोति पीनसम तेन रुद्धो गुरुगुरुकम तथा, और उसकी वजह से फिर पीनस राइनाइटिस हो जाता है, प्रतिशाय हो जाता है, इंक्रीज नेजल डिस्चार्ज होने लगता है। तो करोति पीनसम तेन और रुद्धो घुरगुरुकम तथा, और वायु का मार्ग अवरुद्ध होने के कारण, एयरवेज से वायु के गमन ना कर पाने के कारण, ऑब्स्ट्रक्ट एयरवेज होने के कारण वीजिंग साउंड उत्पन्न होती है। वीजिंग या रोंकाई हम कहते हैं। हम जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के एग्जामिनेशन में हमने पढ़ा है कि सामान्यतः ब्रोंकियल ब्रीदिंग साउंड और वेस्टिकुलर ब्रीदिंग साउंड जो है हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन एडवेंटिशियस साउंड, जब भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई विकृति होती है तो हमें स्टिडोर या फिर रोंकाई या वीजिंग साउंड या फिर क्रेपिटेशन से जो है हमें वो सुनने को मिलते हैं। तो स्टर्नम के अलोंग वाला जो एरिया है, स्टर्नम और उसके आसपास का एरिया, वहां पर हमको ये रोंकाई जो है वो सुनने को मिलते हैं जब हम ऑस्कल्टेट करते हैं। तो उसी को ही आचार्य ने कहा वीजिंग साउंड, है ना, ये म्यूजिकल साउंड है, हाई पिच साउंड है, गड़गड़ाहट की आवाज आती है जो जब भी रोगी श्वास बाहर निकालता है, क्योंकि श्वास निकालने में दिक्कत है, एक्सपिरेटरी डिस्निया जो है यहाँ देखने को मिलता है। तो करोति पीनसम तेन रुद्धो घुरगुरुकम तथा अतीव तीव्र वेगम च श्वासम प्राण प्रपीड़िकम, और श्वास का वेग जो है, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और प्राण प्रपीड़िकम, प्राण प्रपीड़िकम प्राणाधिष्ठान हृदय प्रपीड़िकम, तो साथ ही साथ फिर टैकिकार्डिया भी हो जाता है, क्योंकि प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन के कारण जो CO2 है वो बाहर निकल नहीं पा रही, और ऑक्सीजन जो है वो भी कम हो जाती है, और टिश्यूज की जो इंक्रीज डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाती, इसीलिए टैकिकार्डिया प्रारंभ में देखने को मिलता है। फिर आगे आचार्य बताया प्रताम्यति अति वेगेन कासते संयति, यानी कि तमसी प्रवश्यति एव, रोगी स्वयं को जो है अरुणत्र दुखी संप्रद्यते, रोगी अत्यंत दुखी हो जाता है, स्वयं को अंधकार में डूबता हुआ अनुभव करता है, क्योंकि उसे बार बार बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। अतीव तीव्र वेगम च श्वासम प्राण प्रपीड़ितम, और श्लेष्मण्यम उच्यमानेतु भृशम भवति दुःखितः, कि रोगी ऐसा उसको फील है कि कैसे करके कुछ कफ जो है, श्लेष्मा जो है, जो कि अटका हुआ है एयरवेज में, ये बाहर निकल जाए, और इसी को बाहर निकालने के प्रयास में बार बार वो खांसता रहता है ना, और जब, लेकिन वो निकलता नहीं, लेकिन जब एक छोटा सा टुकड़ा भी स्पुटम का बाहर निकल जाता है तो रोगी बहुत कंफर्ट और रिलैक्स फील करता है। इसलिए आचार्य ने लिखा क्लेशमण्यम उच्यमाने तो वृषम भवति दुःखितः तस्यैव च विमोक्षान्ते, उसके बाहर निकल जाने से मुहूर्तम च लभते सुखम, से कुछ समय के लिए थोड़ी राहत महसूस होती। ये जो एस्मा का रोगी है, एस्मा का जो अटैक आता है, तो रोगी क्या है कि जनरली लेट नाइट में, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में 2 बजे के बाद में ज्यादा देखने को मिलता है। रोगी सो रहा होता है, सोते सोते एकदम से चेस्ट में टाइटनेस फील होती है, श्वास लेने में थोड़ा कष्ट का अनुभव होता है, और वो जग जाता है, एकदम बेचैनी उसे होती है, रेस्टलेसनेस फील होती है, वो फिर श्वास लेने का तेजी से प्रयास करने लगता है, और अंदर जो कफ है वो वीजिंग साउंड और कफ की वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है, उसको बाहर निकालने के लिए वो खांसता है, बार बार बाहर निकलता नहीं है, श्वास बाहर जा नहीं रहा है,
ऑक्सीजन की डिमांड पूरी हो नहीं रही है, तो वो अपने मुख को ऊपर कर कर वो बार बार श्वास लेने का बहुत तेज से एयर हंगर वाली स्थिति बन जाती है। वो अपनी बॉडी को थोड़ा बेंड कर लेता है और जो है वो अपनी जो एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, जैसे कि स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है, पेक्टोरलिस माइनर है, सेरेटस एंटीरियर है और इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं, उनकी हेल्प से वो कोई या फिर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता है स्ट्रॉन्ग और झुककर और स्थिर होकर स्कैपुली फिक्स हो जाती हैं, वो फैसिलिटेट होता है उसको रेस्पिरेशन। तो इस तरह से वो जो है रेस्पिरेशन करने की जो है वो एयर लेने की वो प्रयास करता है। थोड़ा बहुत कफ बाहर निकल जाता है तो उसे लाभ मिलता है और ये स्थिति यदि लंबे समय तक चलती रहती है तो इसे ही हम फिर स्टेटस एस्मेटिकस बोलते हैं। तो श्लेष्मण्यम उच्यमाने तो भृशम भवति दुःखिता तस्यैव तो विमुक्षान्ते मुहूर्तम लभते सुखम अथास्य ध्वंसते कंठा, ध्वंसते यानी कंडूयते, यानी कि इचिंग होती है, इरिटेशन होती है कंठ प्रदेश में। कृष्णा शक्नोति भाषितम, बोल पाता नहीं है। नाचापि निद्राम लभते, नींद ले नहीं पाता है। शयाना श्वास पीड़िता, और लेटने पर जो है उसको जो है ये श्वास लेने में उसका जो कष्ट है, डिफिकल्टी है, वो बढ़ जाती है। क्योंकि लेटने पर ऑर्थोपनिया की स्थिति में क्या होता है कि डायफ्राम का लेवल भी थोड़ा ऊपर हो जाता है और नीचे से प्रेशर आ रहा है चेस्ट कैविटी पर, तो लंग्स भी जो है एक्सपांड नहीं हो पाते जितना कि बैठने पर हो पाते हैं। तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम भी जो है वो कम हो जाता है। तो इस वजह से रोगी को सांस लेने में जो कष्ट है वो बढ़ जाता है। बैठने पर डायफ्राम जो है अपनी लोअर मोस्ट पोजीशन पर चला जाता है और लंग्स को भी एक्सपांड होने में थोड़ा फैसिलिटेट होता है, तो उसे रेस्पिरेशन करने में थोड़ी इजी रहता है। तो इसीलिए जो है आचार्य ने लिखा आसीनो लभते सौख्यम नाचापि निद्रां लभते शयानः श्वास पीड़िता और पार्श्वे तस्याव गृह्णाति। और पार्श्व प्रदेश में क्योंकि बार बार वो एसेसिड रेस्पिरेटरी मसल्स के हेल्प से वो श्वास लेने का प्रयास कर रहा है, इसलिए जो है बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो जाता है, उसकी वजह से उसे पार्श्वशूल भी हो जाता है। ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, एक्सर्शन ज्यादा हो रहा है, लैक्टिक एसिड भी बन जाता है, वो भी डिपॉजिट हो जाता है, इसी वजह से भी पार्श्वशूल हो जाता है। और आसीनो लभते सौख्यम, बैठने पर उसे आराम महसूस होता है। उष्णम चैवाभिनंदति, और उष्ण चीजों से जो है, गर्म चीजों से उसे आराम मिलता है, क्योंकि वात और कफ दोनों ही शीत गुण प्रधान है। वात कफात्मक व्याधि है, इसलिए शीत गुण प्रधान, उष्ण गुण प्रधान, जैसे चाय कॉफी भी पीने को दे देते हैं तो उससे भी रोगी को जो है आराम अनुभव होता है। इसी प्रकार से अन्य लक्षण आचार्य ने बताया कि उच्चताक्षो ललाटेन शुद्धता, पसीना आ जाता है फोरहेड पर, स्वेटिंग होने लगती है, ड्राई माउथ हो जाता है, क्योंकि मुंह से श्वास लेने लगता है, मुश्च उधम्यते आदि, इस प्रकार से आचार्य ने बताया। तो इसके बाद में आचार्य ने इसके उपशय अनुपशय भी बताया, इसके एग्रीवेटिंग फैक्टर बताया कि किन कारणों से बढ़ जाता है। तो मेघाम्बु शीत प्राग वातहि श्लेष्मलहि च विवर्धते, जब भी बादल हो जाते हैं ज्यादा, या ठंडा मौसम हो जाता है, या ठंडा पानी या ठंडी चीजों का सेवन रोगी कर लेता है, या प्राग वातई अर्ली मॉर्निंग की जो ठंडी एयर होती है उसके संपर्क में रोगी आता है, तो या फिर कफवर्धक जो भी वस्तुएं हैं, आहार या विहार हैं, उन सब के कारण ये जो रोग है वो एग्रेवेट हो जाता है। सा याप्यस्तंकः श्वासः साध्यो वा स्यात् नवोत्थितः, जब ये नया होता है, शुरू हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो साध्य भी है, और पुराना होने पर ये याप्य होता है। याप्य मतलब मैनेजेबल है, यानी कि कंप्लीटली क्योर नहीं है, मैनेजेबल है। एक बार हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस आ जाती है जब ब्रोंकस में, तब उसको वापस से पहले वाली स्थिति में लाना, उसमें बहुत समय, धैर्य और पथ्य का प्रयोग चाहिए होता है। तो और फिर हमेशा के लिए एलर्जन से बचना, एजेंट से बचना भी संभव नहीं हो पाता है यदि वो एक्सटेंसिव टाइप का एज्मा है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये मैनेजेबल डिजीज है। मैनेजेबल याप्य रोगों के लिए आचार्य ने बताया कि शेषत्वाद आयुषो याप्यम पथ्यम, जो आयु शेष होने के कारण पथ्य सेवन करने के कारण
जो असाध्य रोग हैं वो रोगी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा है, रोग आगे जो है और बिगड़ नहीं रहा है यदि पथ्य का सेवन करता रहता है और आयु उसकी शेष है ना। लेकिन और चिकित्सा कुछ ले रहा है, यदि मान लो वह ऐसा नहीं कर रहा है या फिर जैसे ही वो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स के संपर्क में आता है या पथ्य का सेवन कर लेता है तो लब्धाल्पम सुखेन अल्पेन हेतुना आशु प्रवर्तकम, तो अल्प हेतु से ही थोड़ी से ही निदान से वो जो है शीघ्र ही रोग जो है वो एग्रीवेट हो जाता है, बढ़ जाता है। और दीर्घानुशायीनम रोगम, दीर्घानुशायी नित्यानुशायीनम रोगम, दीर्घ कालम अवस्थितम नित्यानुशायी रोग है, बार बार इसके अटैक आते रहते हैं, एपिसोड्स आते रहते हैं और दीर्घ काल लंबे समय तक जो है ये रोग बना हुआ रहता है रोगी में। तो ऐसा जो है प्रेजेंटेशन एज इट इज हमको तमकश्वास रोग के रोगी में देखने को मिलता है। तो यहाँ जो अब हम मॉडर्न एस्पेक्ट की बात करते हैं ब्रोंकियल एस्मा की, समय कम है फटाफट फिनिश कर रहा हूँ, कि वहां पर हम देखते हैं कि जो एयर पैसेज हैं उनमें क्या होता है कि इन सब कारणों के संपर्क में जब रोगी आता है तो उसमें क्या हो जाता है कि हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस है पहले से ही। जैसे ही रोगी डस्ट, एनिमल माइट्स या पोलन ग्रेन्स आदि के जैसे ही संपर्क में आता है वैसे ही जो ब्रोंकस वाल है उसमें क्या होता है कि एंटीजन, उसमें जो मास्ट सेल्स हैं वहां पर पहले से ही आईजीई एंटीबॉडीज उपस्थित होती हैं और एंटीजन एंटीबॉडी, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी के संपर्क में आता है, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक दूसरे से मिलकर कंबाइंड हो जाते हैं और फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो मास्ट सेल्स हैं उनका ऑटोलाइसिस हो जाता है और जो मीडिएटर्स हैं इन्फ्लामेशन के, जो केमिकल मीडिएटर्स हैं वो सीक्रेट होते हैं। वो केमिकल मीडिएटर्स क्या हैं, जैसे कि सेरोटोनिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, हिस्टामिन है, ल्यूकोट्रीन्स हैं। ये केमिकल जो मीडिएटर्स हैं ये क्या करते हैं कि ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से जो एयर पैसेज है उसका क्या हो जाता है, मार्गावरोध हो जाता है। और साथ ही साथ दूसरा क्या है कि इनकी वजह से वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। ये डायलेटेशन भी कराते हैं वेसल्स का, ब्लड वेसल्स का, और इस वजह से उनकी परमिएबिलिटी बढ़ जाने के कारण उनसे म्यूकस सीक्रेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ यहाँ जो गॉबलेट सेल्स हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं उनका भी हाइपरप्लाजिया हो जाता है। तो म्यूकस के ज्यादा सीक्रेशन से, एक्सेसिव सीक्रेशन से, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होने के कारण स्रोतावरोध हो जाता है, एयर पैसेज जो है वो नैरो हो जाता है। इसलिए जो है एयर जब उसमें से निकलती है तो व्हीजिंग साउंड जो है हमें सुनाई देने को मिलती है। क्या इसलिए जब हम चिकित्सा करते हैं तो औषधियाँ ऐसी औषधियों का चयन करते हैं जो कि वहाँ की इन्फ्लामेशन को कम करे। जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स हैं उनका उपयोग हम कराते हैं। आम पाचक औषधियों का प्रयोग कराते हैं क्योंकि यहाँ जो है कफ वात दोष प्रकोप है, पित्त स्थान से समुद्भव है। आम दोष की उत्पत्ति होती है, वे साम दोष जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाते हैं तो रस का मल, रस धात्वाग्नि मानदेवी वहां देखने को मिलता है। इस वजह से वहां पे रस का मल कफ है तो मलभूत कफ की वृद्धि हो जाती है और प्राकृत कफ जो है उसकी हानि होती है। तो ये जो है द्वितीय प्रकार की संप्राप्ति में जो है विशेष रूप से हमको देखने को मिलता है तमकश्वास रोग की। अभी समय कम है इसलिए मैं फटाफट इसको खत्म करता हूँ। तो यहाँ चिकित्सा में हमको ध्यान देना है कि यदि मान लो एक तो कफ वाता, इसलिए कफ वातात्मक रोग है, इसलिए यत् किंचित कफ वाताग्नम उष्णम वातानुलोमनम, कफ और वात का शमन करने वाले, उष्ण और वातानुलोमन कराने वाले जो भी द्रव्य हैं वो तमकश्वास रोग में हितकर हैं। दूसरा है पित्त स्थान समुद्भव व्याधि है, इसलिए पित्त स्थान की और विशेष रूप से युवाओं में, क्योंकि वह पित्त प्रकोप का काल है, वहां केवल एक मधुयष्टि का ही साथ में प्रयोग करा देने से रोगियों में आशातीत परिणाम जो है देखने में आते हैं। तीसरी बात जो इसका जो चिकित्सा सूत्र हमने पढ़ा है, का श्वासार्धतम स्निग्ध यादव से उपाचरे आक्तम लवण तेलेन नाड़िक स्तर संकरे, तो
स्निग्ध स्वेद कराने से सरसों के तेल में या तिल तेल में हमने सेंधा लवण उसको गर्म करके उसी की मालिश कर दी। यदि थोड़ा सा यदि डिस्निया है, एक्सपिरेटरी डिस्निया थोड़ा है, तो ये वहां पर उपयोगी है। उससे तैरस से ग्रथित श्लेष्मा, ऊष्मा से जो श्लेष्मा है ग्रथित हो जाता है। स्रोता सो विलियते, और म्यूकोलाइसिस और म्यूकोकाइनेसिस होने की वजह से वो जो कफ है वो वहां से प्रविलियमान हो जाता है। खानी मार्दवम आयंती, और जो स्रोतों में मृदुता उत्पन्न हो जाती है। और तत्व वातानुलोमता और वायु अनुलोमन हो जाने के कारण फिर वह श्वास कष्ट जो है वो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ हमको यदि वात प्रधान संप्राप्ति मिल रही है, एलर्जिक, या हम कहते हैं जो एक्सटेंसिक एज्मा यदि हमको मिल रहा है, तो वहां पर हमको वातनाशक चिकित्सा, क्योंकि तो 3 प्रकार की चिकित्सा चरक ने बताई, वातनाशक का प्रदान। तो यहाँ पर वातनाशक का प्रधान चिकित्सा हमें करनी होगी, जहां पर हमें द्वितीय प्रकार की संप्राप्ति, क्योंकि एक प्रकार के रोगी हैं जो उन्हें रोग का अटैक आता है और फिर जब 2 एपिसोड के बीच में, 2 अटैक के बीच में वो एकदम नॉर्मल रहते हैं, तो वहां हमें वातनाशक का प्रधान चिकित्सा। और दूसरे रोगी ऐसे होते हैं उनमें क्या है कि अटैक नहीं, एक्सटेंसिव अस्थमा नहीं, यहाँ कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं मिलती है, ना ही आईजी एंटीबॉडी बढ़ी हुई मिलती है, ना स्किन एलर्जी टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो ऐसे जो रोगी हैं उनमें जो है श्वास कष्ट निरंतर बना हुआ रहता है। वहां शाम कफ के लिए हमको उसका पाचन कराना, उष्ण चिकित्सा करना, वात शामक जो है वहां हमको कफ शामक चिकित्सा करनी है। और कुछ रोगी ऐसे होते हैं, दोनों बात देखने को मिलती है, तो वहाँ वात कफ नाशक चिकित्सा करने को मिलती है। इसी प्रकार से रोगी का भी हमें ध्यान रखना है कि वो बाल अवस्था का है, युवावस्था का है, वृद्धावस्था का है, उसी प्रकार से औषधियों का चयन करना होता है। और भृंगण, शमन, कर्षण 3 प्रकार की चिकित्सा बताई आचार्य ने। जो दुर्बल रोगी हैं वहां यदि हम कफनाशक चिकित्सा का प्रयोग करते हैं, तो फिर वात की वृद्धि होने से रोग प्रकोपित हो जाता है, ठीक नहीं हो पाता है। तो वहां जो है भृंगण चिकित्सा आचार्य ने लिखी है, उसके लिए कुछ उपाय भी उन्होंने बताए हैं। तो और बलवान रोगी है वहां भी यदि वह शमन को ग्रहण कर सकता है तो मृदु वमन कराया जा सकता है। और उसके बाद जो है धूमपान आदि का प्रयोग उसमें जो है प्रयोग कराया जा सकता है। अन्यथा फिर शमन चिकित्सा हमारे पास है ही रोगी के लिए। सामान्यतः हम जो है उसे पीक फ्लोमीटर, स्पायरोमीटर तो लैब में ही कर सकते हैं। तो पीक फ्लोमीटर रोगी जो है पीक फ्लोमीटर की हेल्प से खुद भी एसेस कर सकता है कि कितना उसका पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट है, और डे बाय डे उसकी जो कितना इम्प्रूवमेंट है ट्रीटमेंट में, ये भी हम चेक कर सकते हैं। और एज वेल एज डायग्नोसिस में भी ये हेल्प करता है। और तो यही चिकित्सा से रिलेटेड मेन बात है। तो मैंने समय ना होने के कारण जो है वो फटाफट इसको कर दिया है। और कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है आप लोगों की, तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much, sir, for sharing various aspects of stomach Shwas with bronchial asthma. It has given all of us a great sense of direction towards stomach Shwas. Thank you very much, sir. Now it's time for the question answer session. If anybody having any question, any query regarding today's session, they can ask or can raise their virtual hand as well. Also, if somebody like to share his or her view, opinion, that can also be shared. सारे उपस्थित विद्यार्थी जन, डिग्निटरीज, यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अब ये मंच खुला है प्रश्न उत्तर के लिए। आप अपनी क्वेरी चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। I think all have understood, sir.
There is no more question now. हाँ, मतलब या तो मैंने इतना अच्छा डिस्क्राइब नहीं, किया आपने है अच्छा या उनको एक्सप्लेन बिल्कुल किया समझ सर। में नहीं आया है, दोनों में से कोई एक ही बात ही होती है जब कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो। नहीं नहीं सर, आपने बहुत अच्छा समझाया। हमारे विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा आपके लेक्चर से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू so वेरी much, मच ma'am. मैम। आपका कोई ओपिनियन है वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, आपके विचार व्यक्त कर सकते हैं। आपका स्वागत है। शायद कोई प्रश्न नहीं है सर, तो हम इसे अब आगे बढ़ाते हुए फॉर्मली वोट ऑफ थैंक्स की ओर प्रस्थान करते हैं। Now, with the permission of respected dignitaries and governing bodies, I would like to declare that the session of today is going. We may vote of thanks to sir. It's an honor for me to have the opportunity to propose a vote of thanks on the 121st webinar of Gyan Ganga, a Voyage of Knowledge, a webinar series organized by Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth. On behalf of organizing committee, I want to express my gratitude to our respected and renowned speaker, Dr. Puneet Kumar Garg sir, for his knowledgeable explanation on the topic and etiopathological study of tamak shwas with service bronchial asthma. Thank you so much, sir, for enlightening us with your detailed discussion on this topic. I would like to thank wholeheartedly respected Padma Bhushan Vaidya Shri Devendrajit Triguna, sir, President Governing Body RAV, for his blessings and continuous encouragement. I express my humble thanks to Vaidya Manoj Nesi sir, Advisor Ayurveda, Minister of Ayush, for providing us his immense support and guidance. We are highly obliged to you, sir. I extend my heartfelt gratitude to Dr. Kaustubh Upadhyay sir, Advisor Ayurveda, also holding charges Director RAV, for his constant guidance and motivation. I thank him for his valuable contribution and encouragement in all our efforts. Thank you, sir. I offer my sincere acknowledgement to the encouraging team of RAV and the volunteers who work behind the scene for their tremendous efforts to make this webinar series a great success. I'm also grateful to all the respected Gurujans and participants who are connecting with us continuously throughout the series in spite of their busy schedule. Thank you. Thank you so much to all. I would like to inform that the topic and speaker for the next webinar will be shared with you very soon. Thank you. Jai Ayurveda.